Hello students, welcome all of you to my channel. The name of my channel, it is समझो chemistry detail में. So I have brought again some more questions of electrochemistry from plus 2. In my previous video I have solved some questions from electrochemistry. Some are very short answer questions, some are MCQs. So now in this video also there are some questions which are MCQs and there are numerical problems and there are the very short answer questions, that is objective type questions, each carrying 1 mark. So you will be solving these questions, and if you solve these questions I think you will be excel in your CBSE board examination. So the first question is already written in the blackboard. So that is, if E naught Fe plus 2 to Fe is this much, minus 0.441 volt, and A naught Fe plus 3 to Fe plus 2 is 0.771 volt, then the standard EMF of the reaction, standard EMF मतलब आपको E naught सेल निकालना है, ये रिएक्शन का जो है E naught सेल वैल्यू इनमें से कौन सा है वो ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए पहले तो हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं, एंड देन आपको पता ही है कि ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या है. ई नॉट सेल जो कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. तो आपको पहले रिएक्शन लिख करके आपको देखना है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन से एनोड कौन सा बन रहा है और कैथोड कौन सा बन रहा है. एनोड कैथोड समझने के बाद आपको सेल को कंस्ट्रक्ट करना है, एंड वंस यू construct the cell you can easily find out the standard cell potential of the cell by the formula E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode, या तो E naught R minus E naught L, because you know cathode is in the right hand side of the cell and anode is written in the left hand side of the cell. तो पहले हम देखें कि which one is getting oxidized and which one is getting reduced. On the basis of that we will construct the cell and then we will calculate the E naught cell value. So if this is the reaction Fe plus 2 Fe plus 3 producing 3 Fe plus 2, then we can write Fe getting converted to Fe plus 2 by losing 2 electrons. This is your oxidation half reaction, and the reduction half reaction will be Fe plus 3 gaining 1 electron and getting converted to Fe plus 2. Now in order to balance the number of the electrons, you know, in a redox reaction the overall reaction जो है उसको लिखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करना है. तो उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड ये आपको बराबर करना होता है. तो उसके लिए अगर कोई रिएक्शन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़े तो आपको मल्टीप्लाई करना है. सो वी कैन सी हियर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैज़ बीन लॉस्ट और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का गेनिंग हुआ है. तो इसको हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 2 Fe plus 3 plus 2 electrons producing 2 Fe plus 2. Now add this one and this one, तो आपका रिएक्शन वही हो जाएगा Fe plus 2 Fe plus 3. ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया और आपका Fe plus 2 टोटल बन गया 3 Fe plus 2. अब इससे आपको सेल समझ में आ रहा है. तो ऑक्सीडेशन Fe का हुआ है, Fe plus 2 में कन्वर्ट हुआ है. दैट मीन्स एनोड आपका जो है ये बनेगा एनोड. द सेल विल बी रिप्रेजेंटेड, द सेल इज दिस Fe स्लैश Fe plus 2. डबल लाइन से सॉल्ट ब्रिज को हम इंडिकेट करते हैं, और उसके बाद जो है कैथोड में आयन पहले लिखना होगा. सो आयन कौन सा है Fe plus 3 स्लैश ये कन्वर्ट हो रहा है Fe plus 2 में. सो ये आपका सेल है. अगर ये आपका सेल है तो इससे बड़ा आसानी से हम जो है E naught सेल निकाल सकते हैं. तो E naught सेल विल बी इक्वल टू E naught कैथोड माइनस E naught anode. So cathode means this Fe plus 3 Fe plus 2, that means we will write E naught Fe plus 3 slash Fe plus 2 minus E naught Fe plus 2 slash Fe.
दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज जो कि आपको दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है Fe+3 to Fe+2 is 0.771, so it is 0.771 minus Fe+3 to Fe is minus 0.441, minus 0.441, so it will be 0.771 plus 0.441, so it will be 1.212 volt. So out of all these options, this one will be the correct option. So this is how we have calculated the standard cell potential of the cell. तो first of all कोई भी reaction से अगर आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, तो पहले आपको समझ लेना है सेल कौन सा है। तो सेल कौन सा है, सेल कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, उसके लिए पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना जरूरी है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन समझने से आप एनोड समझ जाओगे, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन अगर आपको समझ में आ गया तो आप कैथोड समझ जाओगे। उसके बाद ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके आप ई नॉट सेल कैलकुलेट कर सकते हो। सो दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट वी आर टेकिंग अनदर MCQ. Which one of the following statement is always true about the spontaneous cell reaction in a galvanic cell. So these are the options. E naught cell greater than 0, delta G naught greater than 0, and Q greater than Kc. Number 2, E naught cell less than 0, delta G naught less than 0, and Q less than Kc. Number 3, E naught cell greater than 0, delta G naught less than 0, and Q less than Kc. And fourth option is E naught cell greater than 0, delta G naught less than 0, and Q greater than Kc. So इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है कि एक स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के केस में which ऑप्शन शुड बी करेक्ट। तो ई नॉट सेल, डेल्टा जी नॉट, इनके बारे में आपको पता है। डेल्टा जी नॉट क्या है? इट इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। नाउ हाउ इज
E naught cell, that is standard cell potential and standard free energy change, they are related. और एक सेल रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस होना है तो आप सबको पता है कि E naught सेल, दैट इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वैल्यू, दैट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वैल्यू अगर पॉजिटिव नहीं हुआ तो द रिएक्शन विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस. तो इसीलिए हमें वो वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है यहाँ पे. सो लेट अस राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द रिलेशन बिटवीन डेल्टा G naught एंड E naught सेल. दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर. आपको पता है डेल्टा G naught इज इक्वल टू माइनस NF E naught सेल. ये आपने लेसन में पढ़ रखा है. So delta G naught is the standard free energy change of the reaction. N number of electrons involved in the reaction. F is Faraday. E naught cell is the standard cell potential. Now, if a reaction has to be spontaneous, एक reaction अगर spontaneous होना है तो E naught cell standard cell potential value should be always positive. अगर E naught cell positive होगा, that means it will be greater than 0. ये तो आपको पता ही है कि कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव हो तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0. एंड 0 होने से तो कोई और ही बात होगी. तो पॉजिटिव होना मतलब E naught cell should be greater than 0. एंड E naught cell if it is greater than 0, automatically delta G naught क्या होगा? Delta G naught will be negative. So for any spontaneous reaction, delta G naught value should be always negative. So delta G should be less than 0. E naught cell should be positive. That means it should be greater than 0. ये दोनों का तो हम समझ गए. लेकिन what is Q? Q क्या है? Kc भी हमें समझ में आती है. Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. लेकिन Q क्या है? ये Q के बारे में थोड़ा सा अगर आप पीछे जाओ, आप क्लास 1 में थोड़ा सा याद करो जो इक्विलिब्रियम का लेसन था. इक्विलिब्रियम का लेसन में आपको एक जो है कंसेप्ट दिया गया था रिएक्शन कोशन का. रिएक्शन कोशन का जो आपको कंसंट्रेशन कोशन या तो रिएक्शन कोशन का जो आपको एक आइडिया, एक कंसेप्ट आपको दिया गया था, उसको लेट अस रिकैपिचुलेट दैट. सो अगर सपोज करो ये एक आपका एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन, सपोज A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B प्रोड्यूसिंग X मोल्स ऑफ X प्लस Y मोल्स ऑफ Y. सो व्हाट इज Q? Q जो कि कॉन्सेंट्रेशन कोशेंट या तो रिएक्शन कोशेंट है, उसको सिंपली आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा. Q इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X टू द पावर X इंटू Y टू द पावर Y डिवाइडेड बाई concentration of A to the power A into concentration of B to the power B. ये है आपका रिएक्शन कोशेंट या तो कंसंट्रेशन कोशेंट का एक्सप्रेशन. सो ये जो Q है ये कंसंट्रेशन का जो रेशियो है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ईच रेज टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. जैसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A का क्या है स्मॉल a, B का क्या है स्मॉल b, X का स्मॉल x, Y का स्मॉल y. तो ये सारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आपको एज पावर लिख देना पड़ेगा. तो ऊपर में न्यूमरेटर में ऑलवेज आपको कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा. हर एक का पावर में आपको वही जो नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व है रिएक्शन में, जिसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोल रहे हैं, उसको पावर करके लिखना पड़ेगा. और नीचे आपको रिएक्टेंट्स का लिखना पड़ेगा, मोलर कंसंट्रेशन ईच रेज टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ये हो गया आपका रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन. ये है आपका कोई भी स्टेज में व्हेन इक्विलिब्रियम हैज नॉट बीन अटेन्ड. इक्विलिब्रियम के अलावा अदर देन द इक्विलिब्रियम स्टेज. इक्विलिब्रियम स्टेज आपको पता ही है कि व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो है इक्वल हो जाता है. लेकिन इक्विलिब्रियम के अलावा जो भी रिएक्शन का कोई भी स्टेज है, कोई भी स्टेज में कंसंट्रेशन का जो रेशियो है उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं. तो Q रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. ये है Q. तो इट इज द कंसंट्रेशन रेशियो इन ए स्टेज अदर देन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम के अलावा कोई भी स्टेज में ये जो कंसंट्रेशन का रेशियो है इसी को ही कहा जाता है कंसंट्रेशन कोशेंट या तो रिएक्शन कोशेंट. तो Q और Kp या Kc, जैसे मैंने बोल दिया Kp Kc या Qp Qc, that means you can understand that when I say Kc, when I say Qc, और सिंपली आप Q भी बोल सकते हो, Qp Qc भी बोला जाता है. इट इज वेरी ऑब्वियस दैट व्हेन यू स्पीक ऑफ Kc
and Kp, that means Kc means the equilibrium constant in terms of the concentration of the reactants and the products, and अगर हम Kp बोल रहे हैं that means it is all the reactants and the products they are in the gaseous state, so उनका partial pressure के रिस्पेक्ट में आपको जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन Kp एंड Kc. सिमिलरली Qp एंड Qc. सो ये जो आपका Q है कंसंट्रेशन का रेशियो है, प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का जो रेशियो है, इसको तो क्या होना पड़ेगा Kc के साथ जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके साथ इक्वल होना पड़ेगा. तो कंडीशंस ये है, इफ Q इज इक्वल टू Kc, Q और Kc अगर एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाए, then the reaction will be in the equilibrium stage. It is very simple कि अगर Q जो कि कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का जो रेशियो है उस वो अगर Kc के साथ इक्वल है, that means the reaction is in the equilibrium stage. But if Q is greater than Kc, Q अगर Kc से ग्रेटर है, दैट मीन्स क्या, ये जो X का कॉन्सेंट्रेशन और Y का कॉन्सेंट्रेशन जो प्रोडक्ट में इनका कॉन्सेंट्रेशन A और B के कॉन्सेंट्रेशन से काफी हाई है, तो क्या होना पड़ेगा, Q इफ इट इज ग्रेटर देन Kc, तो Q को डिक्रीज होना पड़ेगा ताकि वो Kc के साथ इक्वल हो जाए. अगर Q को डिक्रीज होना है तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए, ये प्रोडक्ट्स जो है रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना चाहिए. दैट मीन्स द रिएक्शन शुड टेक प्लेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होना है. अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा तो क्या आप उसको स्पॉन्टेनियस बोलोगे? एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तो तब है जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगा, तब उसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. सो इफ Q इज ग्रेटर देन Kc, देन Q in order to become equal to Kc, Q should decrease and then reaction will take place in the backward direction. Now what will happen if Q is third condition, if Q is less than Kc, देन Q को क्या होना पड़ेगा, Q को इंक्रीज होना पड़ेगा, सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू Kc. Kc के साथ इक्वल होने के लिए Q को इंक्रीज होना है. Q अगर इंक्रीज होना है Q को, इन दैट केस जो रिएक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन में होगा, द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. दैट मीन्स द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस. सो फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शुड टेक प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड Q जो कि कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का रेशियो है, उसको क्या होना पड़ेगा, उसको इंक्रीज होना पड़ेगा ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो. Q को इंक्रीज होने के लिए आपको Q का एक्सप्रेशन मैंने लिख करके दिखाया. न्यूमरेटर में क्या है, प्रोडक्ट्स है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होने से जो प्रोडक्ट्स है X और Y, इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और जो है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा. दैट मीन्स इफ Q इज लेस देन Kc, देन Q शुड increase to become equal to Kc, that is the reaction would take place in the forward direction. So Q को Kc से लेस रहना पड़ेगा so that the reaction becomes spontaneous. If Q is less than Kc,
then in order to become equal to Kc, the reaction should take place in the forward direction, so that Q increases and becomes equal to Kc. So Q, when it is less than Kc, then the reactants will react and form the products. That means reaction will take place in the forward direction. That means the reaction will be a spontaneous reaction. तो that's why आपका ये जो ऑप्शंस है, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है आपको करेक्ट लग रहा है? दिस इज द ऑप्शन विच इज द करेक्ट ऑप्शन. E नॉट सेल पॉजिटिव होना है, दैट मीन्स E नॉट सेल शुड बी ग्रेटर देन 0. डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा G नॉट शुड बी लेस देन 0. रिलेशन आपको पहले मैंने लिख करके दिखा दिया कि डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल. एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी हो सकता है, एक रेडॉक्स रिएक्शन, व्हेन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज पॉजिटिव, सो E नॉट सेल इज पॉजिटिव. इफ E नॉट सेल इज पॉजिटिव देन डेल्टा G नॉट शुड बी नेगेटिव, दैट मीन्स इट शुड बी लेस देन 0 एंड Q शुड बी लेस देन Kc, ताकि Q इंक्रीज हो जाए. और Q को इंक्रीज होने के लिए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज होना चाहिए और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज होना चाहिए. दैट मीन्स द रिएक्शन शुड टेक प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन and reaction becomes spontaneous. So this is the option. बाकी सारे options जो है कोई भी correct नहीं है. So this third option is correct. So let us solve the next question. And this is the question. If a reaction has an equilibrium constant K less than 1, then E naught cell is positive or negative? ये क्वेश्चन है. इसके साथ एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द value of K when E naught cell is equal to 0 volt. So the first part of the question उसमें पूछा है कि K if it is less than 1 then E naught cell will be positive or negative. और सेकेंड पार्ट में पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K. K क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. व्हेन E नॉट सेल इज इक्वल टू 0 वोल्ट. सो लेट्स राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड E नॉट सेल, दैट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. सो दिस इज द रिलेशन E नॉट सेल is equal to 0.0591 by n log K. ये रिलेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का. अभी आपको बोला है कि K इफ इट इज लेस देन 1 देन E नॉट सेल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव. तो अगर K जो है आपका 1 से कम लेस है, तो लेट अस सपोज K इज इक्वल टू 0.01, 1 से कम है, 0.01 हम ले लेते हैं या 0.02 ले लेते हैं, 0.03 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं. तो 0.01 अगर हमने ले लिया K की वैल्यू, तो क्या है आपकी 0.0591 बाई n log, सपोज हम ले लेते हैं K इज लेस देन 1 मीन्स लेट अस सपोज इट इज 0.01, 1 से छोटा है. तो 0.01 को आप क्या लिख सकते हो? 0.0591 बाई n log
ये लिखा जा सकता है 10 raised to the power -2. That means what? 0.0591 by n इंटू क्या होगा -2 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 है, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं -2. अगर -2 हो गया तो आपका E0 सेल की वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. सो E0 सेल वैल्यू विल बी नेगेटिव. तो इस तरह से आपको आंसर बोलना है कि एज दे आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन, सो इफ k is less than 1 then the E0 cell value will be negative. by taking an example, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बता सकते हो कि why it will be negative, it will not be positive. तो अगर हमने 1 से छोटा कोई वैल्यू ले लिया, जैसे कि 0.01 ले, सेम विल बी द केस अगर आपने 0.02 ले लिया. अगर यहाँ पे आपने 0.02 ले लिया तो क्या होगा, 0.02 अगर आपने लिया तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 2 into 10 raised to the power -2. 2/100 हो जाएगा, 2 into 10 raised to the power -2. दैट मीन्स आप क्या लिखोगे, दिस इंटू व्हाट, दिस इंटू ये हो जाएगा log 2 -2 log 10, दैट मीन्स 2. तो log 2 की वैल्यू क्या है 0.0591 by n. log 2 की वैल्यू है 0.3010 -2. तो ये जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा तो E0 सेल की वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली ये नेगेटिव आएगा. दैट मीन्स दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि व्हेन k इज लेस देन 1 देन E0 सेल इज नेगेटिव. तो नेक्स्ट पार्ट का हम अभी आंसर करते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k व्हेन E0 सेल इज इक्वल टू 0 वोल्ट. E0 सेल अगर 0 है देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है. सो ये रिलेशन ही है हमारा जिसको हमें अप्लाई करना है सेकेंड पार्ट के आंसर के लिए भी. सो आपको बोला E0 सेल 0 है, तो इफ इट इज 0 देन लेट अस राइट 0 इज इक्वल टू 0.0591 by n log k. log k, तो ये अगर 0 है दैट मीन्स log k ऑल्सो विल बी इक्वल टू 0, और log k इज इक्वल 0 आप लिख सकते हो इज इक्वल टू log 1, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 इज 0. सो इफ log 1 अगर आपने लिख लिया log k इज इक्वल टू 0 मीन्स इट इज log 1, दैट मीन्स यू कैन राइट k इज इक्वल टू 1 देन log k if it is equal to log 1 that means k is equal to 1. So this is how we have solved this problem.